ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টেক মেকানিক্যাল। আমি শুভজিৎ ঠাকুরা। আমি তোমাদের ক্লাস নিতে থাকি এই চ্যানেলে অনেক দিন থেকেই। তো আমি অলরেডি 5-6টা ভিডিও পোস্ট করেছি। তো আমি তখন নিতাম, ওটা আমি স্ক্রিন রেকর্ডারের মাধ্যমে কিন্তু আমি সেগুলো কিন্তু পড়াতাম তোমাদের। তো আগেই তোমাদের বলেছি যে যখন বোর্ডের ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি বোর্ডের মাধ্যমে টিচিং করব। তো এখন কিন্তু বোর্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তো এখন বোর্ডের মাধ্যমেও টিচিং করব এবং স্ক্রিন রেকর্ডারের মাধ্যমেও টিচিং করব। যখন যে টপিকটা থাকবে সেটা ডিপেন্ড করবে বোর্ডে পড়াবো কি স্ক্রিন রেকর্ডারে পড়াবো। যদি আমার লাগে যে স্ক্রিন রেকর্ডারে যেমন কিছু যেগুলো ডিটেলসে পড়ায় সেগুলো কিন্তু স্ক্রিন রেকর্ডারে পড়াতে হবে। যেমন কিছু কিছু টপিক আছে, যেমন ওয়ার্কস অফ সায়েন্স অ্যান্ড ক্যালকুলেশন, সেগুলো কিন্তু বোর্ডে পড়াতে হবে। যেমন কিছু টপিক আছে সে সিঙ্গেল পয়েন্ট কাটিং টুল, সেগুলো কিন্তু অ্যাঙ্গেল সব কিছু বোর্ডের মাধ্যমে বোর্ডে ড্র করে কিন্তু দেখাতে হবে। তো তখন কিন্তু বোর্ড ইউজ করব। তো আমি কিন্তু আমার দিক থেকে সবকিছু ব্যবস্থা করছি তোমাদের জন্য। তোমরা কিন্তু ভালো করে পড়াশোনা করো। তোমরাও কিন্তু ভালো করে যদি পড়াশোনা না করো তোমরা কিন্তু পারফর্ম করতে পারবে না। তো আমি আমার বেস্টটা তোমাদেরকে দিচ্ছি, তোমরাও কিন্তু তোমাদের বেস্ট দিয়ে পড়াশোনা করো। তো আজকে আমি অনেকদিন পর কিন্তু ভিডিওতে অন ক্যামেরা এসেছি, কারণ আজকে কিছু কথা তোমাদের বলবার আছে। আমি এখানে অবশ্যই তোমরা জানো আমার চ্যানেলের নাম কিন্তু টেক মেকানিক্যাল। তো আজকে কিছু আমি আলাদা কিছু বলতে চাই, কারণ টেক মেকানিক্যাল মানে হচ্ছে টেকনিক্যাল মেকানিক্যাল। তো আমি যখন ফিটার টার্নার মেশিনিস্ট ওয়েল্ডার যখন পড়াচ্ছিলাম তখন কিন্তু কমেন্টও আসছিল যে ইলেকট্রিশিয়ান পড়ানোর জন্য। তো তার ফলে আমি দেখলাম যে ইলেকট্রিশিয়ান যখন রিকোয়েস্ট করছে তো ইলেকট্রিশিয়ানে পড়ানোর কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তো আমার ফ্রেন্ড রজনীশ কুমার ফ্রম বিহার, নাও হি ইজ ওয়ার্কিং ইন ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার। তো সে আমারই বন্ধু, আমারই একসাথেই কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। তো সে তোমাদের, তাকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি যে ক্লাসগুলো নিয়ে নেওয়ার জন্য, তো সে রাজি হয়েছে। তো সে কিন্তু তোমাদের আজ থেকে ক্লাস নিতে স্টার্ট করবে। তো ইলেকট্রিশিয়ানে কিন্তু তোমাদের প্রবলেমটা দূর হয়ে যাবে, কারণ আমি জানি সব থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বেশি আছে ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার টার্নার, মেশিনিস্ট। তো এই চারটা ট্রেড যদি ঠিকঠাক পড়ানো যায়, ইলেকট্রিশিয়ানের সাথে ইলেকট্রনিক্সও পড়ানো হয়ে যাবে। তো 5-6টা কিন্তু ট্রেড কভার হয়ে যাবে। তো আজকে কিন্তু তোমাদের রজনীশ কুমারের সাথে আমি পরিচয় করিয়ে দেবো। তো সে তোমাদের পুরোপুরি টপিকে সব কিছু যা থাকবার সে কিন্তু বলবে। আজকে কিন্তু নাও হি ইজ গোয়িং টু স্টার্ট দ্য টপিক বেসিক ইলেকট্রিসিটি। বেসিক ইলেকট্রিসিটি সম্বন্ধে সে কিন্তু বলবে। তো সে ফার্স্ট টাইম কিন্তু টিচিং করছে। তো ফার্স্ট টাইম তার কোনো ভুল হতে পারে, কারণ কথাতে স্টাক এসে যেতে পারে, কারণ সে কিন্তু কখনো পড়ায়নি, এতদিন পর্যন্ত কিন্তু সে স্টুডেন্ট ছিল। তো আমি স্পেশাল রিকোয়েস্ট করেছি, তার জন্য কিন্তু সে রাজি হয়েছে। তো যদি কোনো প্রবলেম ভুল হয়ে থাকে কিন্তু ক্ষমা করে দিও, কোনো ব্যাপার নেই। কারণ তোমরা যদি ওকে সাপোর্ট করো তাহলে কিন্তু ও কিন্তু এগোতে থাকবে। আর আজকে যে লেকচারস হবে সব কিছু, আজকে থেকে যা লেকচারস হবে ইলেকট্রিশিয়ানের সব কিছু কিন্তু হিন্দিতে হবে। তো আমি জানি এখন হিন্দি মানে বোঝা এখনকার দিনে কোনো প্রবলেম না, কারণ হিন্দি সবাই বোঝো, তোমরা বোঝো, বলতেও পারো। তো হিন্দিতে সে কিন্তু সব কিছু পড়াবে। আর নোটস যেগুলো প্রোভাইড করাবে সেগুলো কিন্তু আমি প্রোভাইড করব। তো কোনো প্রবলেম থাকবে না, নোটস হিন্দিতে আমি ইংলিশে আমি প্রোভাইড করে দেবো। তো সে এখন রজনীশ কুমারকে আমি এখন বলে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আমি এখন তোমাদের রজনীশ কুমারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। রজনীশ কুমার, my friend Rajnish Kumar, now he is working in Bhabha Atomic Research Center. He is from Bihar. So he is so much talented guy, কারণ সে কিন্তু ভাবা ছাড়াও কিন্তু ইসরো, সব থেকে আমাদের যেটা স্বপ্নের জায়গা ইসরো, সেটাও কিন্তু ক্র্যাক করে বসে আছে। যেমন ইসরো লখনৌতেও কিন্তু ক্র্যাক করেছে। তো সে তোমাদের পড়াবে আজ থেকে। তো সে কিন্তু তোমাদের সামনে সবকিছু নিজের ডিটেলস এখন দিতে থাকবে। তো তোমরা रजनीश कुमार के कोऑपरेट करो। रजनीश, यू कैन स्टार्ट। हाय, वेलकम फ्रेंड। जैसा कि हमारे फ्रेंड सुजीत ठाकुर ने आपको बताया, मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कराया, तो मैं खुद अपना इंट्रोड्यूस कुछ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ मेरे अपने बारे में। तो मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कलपक्कम में वर्क कर रहा हूँ। तो मेरा फ्रेंड्स ने बोला कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में कुछ टॉपिक लो, तो हम देखें, कुछ आज पढ़ाई किया, कुछ मैं भी तुम्हारे जैसा एक स्टूडेंट ही हूँ, स्टूडेंट दौर से ही गुजर कर इधर आया हूँ, इसलिए अगर कुछ मुझसे गलत हो तो माफ़ी करना। और दोस्त, मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बताऊंगा।
तो जैसा कि सभी लोग को मालूम ही होगा, लेकिन ये जो बोर्ड पर जितना चीज नजर आ रहा है वो चीज आपको इलेक्ट्रिशियन के बारे में मूल जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो आप आगे का टॉपिक रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ, मींस मैटर। तो हम मैटर को जान गए दोस्तों, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, वेट होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ तीन अवस्थाओं में होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित हो उसे हम सॉलिड कहेंगे। जैसे स्टोन, लोहा, इसका आकार निश्चित है, चेंज नहीं हो सकता, इसे हम सॉलिड कहेंगे। सॉलिड के बाद है लिक्विड। इसका आकार निश्चित नहीं होता, जब इसे किसी बर्तन में रख दिया जाए तो उसी का शेप ले लेता है, तो इसका आकार अनिश्चित होता है। इसलिए सॉलिड के रूप में हमारा वाटर हो गया, सॉलिड के रूप में तो स्टोन हो गया, और लिक्विड के रूप में मेरा वाटर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। इस प्रकार आगे है गैस। तो गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगर किसी कमरे में गैस को हम फैला दें तो उसी आकार को ले लेता है, तो इसे हम गैस कहते हैं। गैस का आकार अनिश्चित होता है दोस्तों। फिर आगे हम बताएंगे आपको अणु, मीन्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? पदार्थ का वह छोटा से छोटा अवस्था जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाग ले, उसे हम अणु कहते हैं। और अणु ठोस, द्रव, गैस तीनों में मौजूद रहता है। तीनों का अणु का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो ठोस में अणु किस प्रकार रहता है? कोई अगर ठोस, मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड का अणु एक दूसरे का नजदीक रहता है। ये सॉलिड हुआ, ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड का अणु एक दूसरे का काफी नजदीक होते हैं। इसी प्रकार हम आगे लेंगे लिक्विड। लिक्विड का अणु सॉलिड के अपेक्षा थोड़ा सा फैला हुआ रहता है और गैस स्टेज में बहुत काफी ज्यादा दूरी तक फैला रहता है। ये गैस का मॉलिक्यूल्स है। गैस का मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर तक फैला हुआ रहता है। इसीलिए हमारा जो गैस है वो फैलता काफी तेजी से। अगर किसी जगह पर हम गैस को छोड़ दें तो काफी तेजी से फैलना स्टार्ट करता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स के बाद है मेरा टॉपिक परमाणु, मींस एटम। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें मूल गुण मौजूद नहीं हो, मींस फिजिकल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं हो और केमिकल प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम। और एटम में जो क्या इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है ये हमेशा फ्रीली रहता है। ये मेरा दोस्त एटम हो गया। एटम के बाद हम बताएंगे एटम जो होता है वो कई भागों में जब टूटता है तो टूट कर वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करता है, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोग को बताएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का तीन मूल गुण है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि एटम से टूटकर निकलता है और तीनों का अलग अलग वेट और चार्ज होता है। पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको। परमाणु का वह छोटा भाग, एटम का वह छोटा भाग
जो कि इलेक्ट्रिक करंट में सहायता प्रदान करे, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी चीज में मौजूद होता है, एनीथिंग, किसी भी वस्तु में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन दो तरह के, एक होता है स्टेबल और एक होता है मूवेबल। जैसे कि हमारे पास उदाहरण के तौर पर एक वुड है, एक लकड़ी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसमें हमारा करंट फ्लो नहीं होता, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉन है उसमें, इसके कारण करंट फ्लो नहीं हो रहा। हमारे पास कोई वायर है, उसमें हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह का होता है, स्टेबल, मूवेबल। एनीथिंग, किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन हमारा मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वेट जैसा कि लिखा हुआ है बोर्ड पर 9.02 × 10⁻28 ग्राम, और अगर केजी में हो 31। और इसका चार्ज हमेशा निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा निगेटिव होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। आगे हम जानेंगे दोस्त प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है और इसका जो वेट होता है 1.673 × 10⁻24 ग्राम, एंड इसका चार्ज होता है जो पॉजिटिव में होता है, इसका इलेक्ट्रॉन के जैसा इसका चार्ज होता है, लेकिन इसमें चार्ज पॉजिटिव होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। और आगे जानेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का वेट होता है 1.765 × 10⁻24 ग्राम और इसका चार्ज होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता मेरा दोस्त। इसका आगे हम जान गए पदार्थ के बारे में, अणु के बारे में, परमाणु के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कवर किया। आगे चलते हैं हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट कहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक फिजिकल इफेक्ट। जब किसी मनुष्य में अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है, अगर हम किसी वायर को, नंगा वायर को अगर हम छूते हैं, नंगा वायर को अगर हम पकड़ लेते हैं हाथ में और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, दर्दनाक हादसा भी हो सकता है। तो इसका पहला इफेक्ट है फिजिकल इफेक्ट। मेरा दूसरा इफेक्ट है केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट, जैसा कि हम एक सेल या बैटरी मेरे पास मौजूद है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट मेरा रहता है, वो एक केमिकल इफेक्ट का उदाहरण है। जैसे कि अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके अंदर एक रिएक्शन होता है, क्रिया होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होता है, और वो चार्जेबल मूव में आता है, चार्ज होने लगता है बैटरी। तो ये एक उदाहरण है हमारा सेल या बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब उदाहरण मेरा किसका है, केमिकल इफेक्ट का। मेरा तीसरा इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। जैसा कि हम जानते हैं मेरे पास हीटर है, अगर हीटर में इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित किया जाए तो ऊष्मा पैदा करता है। उसी प्रकार मेरा बल्ब है, बल्ब में अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रवाहित करें तो उसमें भी ऊष्मा पैदा करता है। तो ये सब मेरा उदाहरण है हीटिंग इफेक्ट का। तो तीसरा मेरा हीटिंग इफेक्ट खत्म हुआ और चौथा मेरा है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक हट है। मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये अल्टरनेटर, सभी चीज में ये काम करता है। जैसे एक मेरे पास वायर है, अगर उस वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव होता है। अगर किसी वायर के
में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है और उसके बीच में हमारा कोई लोहे का कील है, तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव करता है। अगर करंट प्रवाहित हो रहा है वायर में, तो उस लोहे का कील में मेरा मैग्नेट का गुण आ जाता है। तो इससे पता चलता है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद है मेरा रे इफेक्ट, जो कि मेडिकल फील्ड में प्रयोग होता है। एक्सरे वगैरह में जो काम करता है, जो हमारा अंदर का स्कैनिंग किया जाता है एक्सरे के द्वारा, वो मेरा रे इफेक्ट से पता चलता है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरा रिकवर हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक टर्म कर जा रहा हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का। ये चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम सबसे पहले चलेंगे ईएमएफ। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फुल फॉर्म में इसका पूरा आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का यह बल है, फोर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह जाने में इसका फोर्स देता है, जो जाने में सहायता प्रदान करता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। अगर इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो उसको भेजने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? ईएमएफ का। इसका यूनिट होता है वोल्ट और इसे डिनोट करते हैं वी से। इसका आगे है दोस्तों वोल्टेज। विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं। विभव मीन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, इसे भी वी से डिनोट करते हैं। तीसरा टॉपिक है मेरा करंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने दोस्तों आपको बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन एक मूवेबल होता है, एक स्टेबल होता है। तो करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। जब इलेक्ट्रॉन मेरा फ्लो होता है, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इसे हम करंट कहेंगे। यानी मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण मेरा वायर में करंट फ्लो हो रहा है। इसका यूनिट एम्पियर होता है और इसे डिनोट करते हैं आई से। अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं किसको? जब इलेक्ट्रिक करंट मेरा किसी वायर में प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने के दौरान रुकावट पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मेरे पास रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा उदाहरण है। मेरे पास, मैं बताने जा रहा हूँ, एक रोड प्लेन है और एक रोड में प्लेन नहीं होते हुए थोड़ा सा ब्रेकर है। तो ब्रेकर वाला रोड पर हम अगर चलेंगे तो उसमें मेरा ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते हैं। हर एक जगह मेरे को ब्रेक लेना पड़ेगा और स्पीड मेरा धीमा हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन जो रोड प्लेन है उसमें हम आराम से चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रेजिस्टेंस का ही एक उदाहरण ये हम बताएं तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित होता है, उसमें जो रुकावट पैदा करता है, जो विरोध पैदा करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट होता है ओम और इसे हम डिनोट करते हैं आर से। और नीचे जो लिखा हुआ है वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक होता है। मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट टू 650 वोल्ट तक होता है। उसके बाद है आगे हाई वोल्टेज 650 वोल्ट टू 11,000 वोल्ट होता है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 11 केवी टू 220 केवी। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज। ये दोनों बार बार पूछा जाता है। डीएमआरसी में 1-2-3 बार रिवाइज कर दिया है और इसरो में भी पूछा है 1-2 बार। इसको, इस टॉपिक को याद रखना। ओके, तो आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं और मैं अगला वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए। उसमें बताऊंगा आगे इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो स्टार्टिंग हुआ, ये आपको बहुत ही सिंपल चीज बताया हूँ। इसका आगे अभी बताऊंगा
बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा पार्ट्स है, ओम्स लॉ वगैरह वगैरह, कंडक्शन, ये सब। तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। ओके, তো আমার ফ্রেন্ড তোমাদের আজ যতটুকু প্ল্যানিং করেছিল সেগুলো কিন্তু তোমাদের পড়িয়ে দিয়েছে। তো বেসিক ইলেকট্রিসিটি আর 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে হয়তো কমপ্লিট করে দিতে পারবে। তারপরে কিন্তু ট্রান্সফরমার যা যা বাকি আছে সেগুলো টপিক কিন্তু পুরোটা টপিক কমপ্লিট করবে। আর যে পিডিএফ এর কথা আমি বলেছি সেগুলো কিন্তু আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো প্রতিদিন, যেদিন যেটা ক্লাস থাকবে সেটা প্রোভাইড করে দেবো। আর আজকে ও যতটুকু পেরেছে ওর 100% দিয়ে কিন্তু তোমাদের পড়ানোর চেষ্টা করেছে। আর যদি তোমাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না, কারণ পরবর্তী ভিডিও যখন আমি পোস্ট করব তখন কিন্তু সবার আগে তোমার কাছে নোটিফিকেশন যাবে। আর যদি কোনো আমার ফ্রেন্ড কোনো ভুল করে থাকে তো তা একটু ক্ষমা করে দিও, আর তাকে কোঅপারেট করতে থাকো যাতে তোমাদের আরো ভালো ভালো নোটস প্রোভাইড করতে পারে। ওকে, আজকে এতটুকুই, বাই। ओके दोस्तों, बाय।